اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ ہاں، تمام ضروری ٹیسٹ لے لیے گئے ہیں، لیکن اب حیران ہوں گے عمران صاحب کے تمام ٹیسٹ اوکے ہیں۔ فیاض اس وقت کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن یہاں آنے کے کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا اور پھر اس نے جو خوفناک چیخم دھاڑ مچائی کہ اس کے پورے جسم میں آگ کے الاؤ جل رہے ہیں، اور تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ جس طرح بگڑ گیا تھا اور اس کا پورا جسم جس طرح تڑمڑ رہا تھا وہ اس قدر خوفناک تھا کہ میں نے اپنی 40 سالہ سروس میں کسی کو اس قدر تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا۔ چنانچہ میں نے سپر فیاض کو طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا اور اب وہ اسی مدہوشی میں ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ تمام ٹیسٹ کلیئر ہے۔ میں نے کارمن میں ڈاکٹر کریم سے اس سلسلے میں تفصیلی بات کی ہے تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سپر فیاض نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ہم کسی ماہر نفسیات سے اس کا علاج کرائیں، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی انجیکشن کا اثر ختم ہوگا اور سپر فیاض ہوش میں آئے گا تو اس کی حالت ایک بار پھر خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے اور کیا جائے، کیونکہ میڈیکلی انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، اور اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو پھر اس کے لیے اس کی حالت درست ہونی چاہیے۔ اس طرح بے ہوشی کے عالم میں تو نفسیاتی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر مشتاق نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمران ان کے لہجے اور انداز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سپر فیاض کے معاملے میں بے حد پریشان ہے۔ کیا ان پر کوئی جادو وغیرہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر مشتاق بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ اس قدر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ڈاکٹر مشتاق نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ پارکنگ میں کہہ رہا تھا کہ سپر فیاض کی یہ حالت کسی جادو کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا، وہ تو وہمی آدمی ہوگا، جادو وغیرہ سب جہالت کی باتیں ہیں، موجودہ دور سائنس کا ہے۔ ڈاکٹر مشتاق نے کہا، اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے، وہ اب بیٹھیں، ابھی چائے نہیں آئی؟ چائے تو پی لیجیے، ڈاکٹر مشتاق نے اٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہا، پھر پی لوں گا، میں نے ضروری کام کرنا ہے۔ شکریہ، عمران نے کہا، اور پھر وہ دفتر سے باہر آ کر سیدھا پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باہر آ کر وہ ایک پلک فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اس نے مخصوص خانے میں کارڈ ڈالا اور اپنے فلیٹ کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں۔ تم ٹیکسی لے کر سینٹرل ہسپتال آ جا۔ سپر فیاض کو بڑا خوفناک اٹیک ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پر ایک بار پھر کالا جادو کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں دوبارہ خواجہ امیر نانبائی کے پاس جانا ہوگا۔ عمران نے کہا، وہ اچھا، میں پہنچ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سلیمان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھا اور پھر مخصوص خانے سے کارڈ نکال کر باہر آ گیا، لیکن وہ دانستہ گیٹ سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابھی سپر فیاض کی بیوی سلمہ لازماً یہاں پہنچے گی اور وہ ان حالات میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد سلیمان رکشا میں وہاں پہنچ گیا تو عمران نے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر کیا ہو گیا ہے فیاض صاحب کو؟ سلیمان نے پوچھا تو عمران نے سینٹرل انٹیلیجنس بیورو جانے سے لے کر اب تک مختلف لوگوں سے ہونے والی گفتگو دوہرا دی۔ آپ کا خیال درست ہے، اس پر پھر کالا جادو کیا گیا ہے۔ سلیمان نے کہا، پہلے تو تم نے بتایا تھا کہ اصل وار ڈاکٹر کریم پر کیا گیا تھا اور سپر فیاض ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اس طاقتور جادو کی زد میں آ گیا، لیکن اب تو معاملہ یکسر مختلف ہے۔ عمران نے کہا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سلیمان نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر محلہ قالین بافاہے پہنچ گئے۔ عمران نے کار ایک جگہ پر روکی اور نیچے اتر کر وہ دونوں خواجہ امیر نانبائی کی دکان کی طرف بڑھنے لگے۔ دکان کی وہی پوزیشن تھی جو پہلے انہوں نے دیکھی تھی۔ خواجہ امیر نانبائی کا بیٹا غلام حسین دیگچوں کے پیچھے بیٹھا لوگوں کو سالن فروخت کر رہا تھا۔ کچھ لوگ اندر بنچوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ ایک کونے میں موجود پرانے اور سال خوردہ سے کاؤنٹر کے پیچھے خواجہ امیر نانبائی بیٹھا حقہ گڑ گڑا رہا تھا۔ عمران اور سلیمان دونوں دکان کی سائیڈ پر موجود ٹوٹی پھوٹی سیڑھی چڑھ کر اندر پہنچ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے کاؤنٹر کے قریب جا کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام برخوردار،
ख्वाजा अमीर नानबाई ने बड़े बेनीज़ाना और ताल्लुक़ से लहजे में जवाब दिया और एक बार फिर हुक्का गिड़गिड़ाने में मसरूफ़ हो गया। ख्वाजा साहिब, हमें पहले भी सैयद चिराग शाह साहिब ने आपके पास भेजा था और आपने मेहरबानी की थी। अब दोबारा इसलिए हाजिर हुए हैं कि इस आदमी पर दोबारा काले जादू का वार किया गया है। सुलेमान ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, पहले वाकई तुम्हारा आदमी हमसाया होने की वजह से ज़द में आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें सिरी का शोरबा दे दिया था, लेकिन इस बार तो इसे बाकायदा निशाना बनाया गया है और ये काम जानबूझकर इस मुकम्मल सलाम करने वाले नौजवान की वजह से हुआ है और वार भी ऐसा खौफनाक है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मामला मेरे से बहुत ऊंचा है, ख्वाजा अमीर नानबाई ने कहा और एक बार फिर हुक्का गुड़ गिड़ाना शुरू कर दिया। मेरी वजह से? क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे मतलब नहीं आता। जो मैंने कह दिया बस कह दिया। मैं जाहिल अनपढ़ आदमी हूं। मतलब किसी उस्ताद से जाकर पूछो। मैं क्या मतलब बताऊं? ख्वाजा अमीर नानबाई ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, बात अपने की है तो मतलब भी आपको ही बताना होगा। इमरान को भी शायद ख्वाजा अमीर नानबाई की बात पर गुस्सा आ गया था। तुम शाह साहिब के लाडले ना होते तो शायद अब तक मतलब समझ भी चुके होते, लेकिन अब क्या करूं? मैं ठहरा नानबाई और वो हैं सैयद चिराग शाह साहब, अब मैं क्या कर सकता हूं? ख्वाजा अमीर नानबाई ने भी गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, अब नाराज ना हूं ख्वाजा साहिब, मैं अपने साहिब की तरफ से अब से मुआफ़ी चाहता हूं। आप हमारे आदमी के लिए कुछ करें, इसकी हालत बेहद ख़राब है। सुलेमान ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा, इसकी ये हालत तो होनी है। इस पर अगिया बीताल का अमल किया गया है और ये अमल काले जादू का सबसे खौफनाक अमल है, लेकिन मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि अगिया बीताल का तोड़ मैं नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि इस सड़क पर आगे चले जाओ। पहले मोड़ के करीब दाएं हाथ पर गिल्ली है। इस गिल्ली में हाफिज अब्दुल्ला रहता है। वो किताबों की जल्द बनाता है। उसका सवा बहुत तेज है, अच्छों को बांध देता है। इसके पास जाओ और मेरा नाम उसे बता देना, मतलब भी वही बताएगा और काम भी वही करेगा। ख्वाजा अमीर नानबाई ने कहा और एक बार फिर बेनियाजी से हुक्का गिड़गिड़ाने लगा। चली साहिब, सुलेमान ने कहा और फिर उठकर सलाम करते हुए वो दोनों मुड़े और आगे पीछे चलते हुए दुकान से नीचे उतरे। अजीब निज़ाम है, इमरान ने बड़बड़ती हुए कहना शुरू ही किया था कि सुलेमान ने इसे टोक दिया। साहिब, इस मामले में कोई बात ना करे। ऐसा ना हो कि सुपर फयाज के साथ साथ और लोगों के लिए भी कोई मसला बन जाए, सुलेमान ने कहा तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। सड़क पर पैदल चलते हुए वो मोड़ तक पहुंच गए और फिर गिली के किनारे पर मौजूद एक आदमी से जब उन्होंने हाफिज अब्दुल्ला का पता पूछा तो वो आदमी चौंक कर उन दोनों को देखने लगा। हाफिज अब्दुल्ला, जो जिल्दें भी बांधता है? इस आदमी ने कहा। हाँ वही, सुलेमान ने जल्दी से कहा। गिली के आखिर में उसकी दुकान है, लेकिन आपको इससे क्या काम है? इस आदमी ने इमरान की तरफ देखते हुए पूछा। है एक काम, सुलेमान ने कहा और आगे बढ़ गया। गिल्ली आगे जाकर बंद हो गई थी। गिली के आखिर में एक दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर एक साइड पर एक बूढ़ा आदमी चटाई बिछाकर इस पर बैठा हुआ था और पुरानी किताबों की जल्दबंदी में मसरूफ़ था। साइड पर वो किताबें पड़ी हुई थीं जिन पर गत्ते चढ़े हुए थे, लेकिन अभी वो मुकम्मल जल्द नहीं की गई थीं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सुलेमान ने कहा तो इस बूढ़े ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। इसकी आंखों पर मोटे शीशों का चश्मा था जिसकी शायद दोनों कमानियां टूट गई थीं, इसलिए उन्हें काले धागे से बांध कर अक़ब में बांधा गया था। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह, आओ, बूढ़े ने भारी आवाज़ में कहा तो सुलेमान और इमरान दुकान के अंदर दाखिल हो गए। मुआफ़ करना, मेरे पास कुर्सियां तो नहीं हैं आपको बिठाने के लिए, अलबत्ता नीचे बैठ सकें तो बैठ जाएं। हाफिज अब्दुल्ला ने माजरत भरे लहजे में कहा तो सुलेमान ने इमरान को बैठने का इशारा किया और खुद भी एक तरफ रखी हुई ईंट को खिसका कर अपनी तरफ किया और फिर इस पर बैठ गया। इमरान ने भी अपनी पैंट का ख्याल किए बगैर एक और ईंट उठाकर नीचे रखी और उस पर बैठ गया। जनाब, हमें आपके पास ख्वाजा अमीर नानबाई ने भेजा है, सुलेमान ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। क्या हुक्म दिया है उन्होंने? हाफिज अब्दुल्ला ने चौंक कर कहा। तो सुलेमान ने इसे पहले सुपर फयाज के बीमार होने पर सैयद चिराग शाह साहिब के पैगाम पर ख्वाजा अमीर नानबाई के पास जाने और फिर उनके यहाँ पहुँचने तक की पूरी तफसील बता दी, जबकि हाफिज अब्दुल्ला इस दौरान जल्दबंदी के काम में इस तरह मसरूफ़ रहा जैसे वो इस दुकान में अकेला बैठा हुआ हो।
सुलेमान बात करके खामोश हो गया तो अब भी हाफिज अब्दुल्ला इसी तरह काम में मसरूफ था। आपका नाम क्या है जनाब? हाफिज अब्दुल्ला ने अचानक सर उठाकर इमरान की तरफ देखते हुए पूछा। अली इमरान। इमरान ने जवाब दिया तो बूढ़े हाफिज अब्दुल्ला के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रींग गई। पूरा नाम बताएं जिससे आप अपना तारुफ कराते रहते हैं। मतलब है अली इमरान MSc DSc आक्सुन। वैसे अली इमरान MSc DSc आक्सुन या साहिब में भी मैं साल तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जल्दबंदी का काम करता रहा हूं। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा तो इमरान के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभरे। आप और ऑक्सफोर्ड में इमरान ने बेइख्तियार हैरत भरे लहजे में कहा। अगर आपकी डिग्रियों पर लोग यकीन कर लेते हैं तो आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? इस बार हाफिज अब्दुल्ला ने खालिस ऑक्सफोर्ड लहजे और ज़बान में बात करते हुए कहा तो इमरान की आंखें हकीकी हैरत से फैलती चली गईं। इसके शायद तसव्वुर में भी न था कि ये बूढ़ा और गरीब जल्दसाज जो ज़मीन पर बैठा पुरानी किताबों की जल्दबंदी कर रहा है और जिसके पास किसी को बिठाने के लिए कुर्सी तक नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साल गुजार चुका होगा। जनाब, वो सुपर फयाज के बारे में मेहरबानी करें। सुलेमान ने जानबूझकर मुदाखलत करते हुए कहा था कि बात को मुख्तसर किया जा सके। हाँ, सुपरिंटेंडेंट फयाज उन अली इमरान MSc DSc आक्सुन की वजह से इस अजाब में मुब्तला हुआ है। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा तो इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा। पहले ख्वाजा अमीर नानबाई ने भी यही कहा था और अब भी यही कह रहे हैं। प्लीज आप मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है? इमरान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ये सारा काफिरिस्तान का खेल है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में आपको बखूबी इल्म है कि काफिरिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर ने इस अहमकाना अंदाज में कार्रवाई करने का प्रोग्राम बनाया कि डॉक्टर एहसन को शदीद बीमार करके हस्पताल पहुंचा दिया जाए और डॉक्टर करीम जो उसका नायब है, इससे उन्होंने पहले ही बात तय कर ली थी। वो कोड बुक की नकल उनके हवाले कर देता, जबकि डॉक्टर एहसन की सेहत याबी की वजह से ऐसा मुमकिन न था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी से है, इसकी मुखालिफ पार्टी को इस प्रोग्राम का इल्म हो गया। वो नहीं चाहते थे कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इस मंसूबे में कामयाब हो जाएं, क्योंकि इस तरह उनकी पार्टी का एजेंडा काफिरिस्तान में बुलंद हो जाता। चुनांचे उन्होंने काफिरिस्तान के एक पंडित से मिलकर डॉक्टर करीम पर भी काला जादू करा दिया, जिसकी जद में आपका सुपर फयाज भी आ गया। लेकिन ख्वाजा अमीर नानबाई ने मेहरबानी की और वो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से एक और मसला खड़ा हो गया कि अली इमरान MSc DSc आक्सुन हरकत में आ गया और डॉक्टर करीम और तुलसी राम दोनों से उन्हें मालूमात मिल गईं। डॉक्टर करीम को तो उन्होंने हुकूमत के हवाले कर दिया, जबकि तुलसी राम और उसके पूरे ग्रुप का खात्मा कर दिया गया। और काफिरिस्तान के वज़ीर आज़म तक जब ये इत्तला पहुंची तो उसने इस बात का इंतकाम लेने का फ़ैसला किया कि अली इमरान MSc DSc आक्सुन से इंतकाम लिया जाए। लेकिन तमाम पंडितों ने बराह रास्त अली इमरान MSc DSc आक्सुन पर काला जादू करने से इसलिए इनकार कर दिया कि अली इमरान MSc DSc आक्सुन है। हाफिज अब्दुल्ला ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो इस बार इमरान ने दोनों हाथ जोड़ दिए। बस कीजिए हाफिज साहब, अब मेरी डिग्रियों को ना दोहराएं, मुझे वाकई शर्म आने लग गई है। इमरान ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा तो हाफिज अब्दुल्ला बेइख्तियार हंस पड़े। हैरत है, खुद तो उन्हें दोहराती रहते हो और जब मैंने तुम्हारी नकल शुरू की तो तुम्हें शर्म आने लग गई। बहरहाल पंडितों ने कहा कि अली इमरान रोशनी का आदमी है और उसके पीछे रोशनी की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इसलिए इस पर आम काला जादू तो किया, इसका सबसे ख़तरनाक अमल आगे अबी ताल भी असरअंदाज ना होगा। लेकिन काफिर सतानी प्राइम मिनिस्टर हर सूरत में इंतकाम लेना चाहता था। चुनांचे वहाँ के पंडितों ने अली इमरान के ऐसे दोस्त का इंतखाब किया जिसका इंतकाम लेने के लिए इमरान काले जादू के मरकज़ का खात्मा करने का फ़ैसला करेगा और फिर काफिरिस्तान एगा और काफिरिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि अली इमरान का खात्मा काले जादू के बगैर मुमकिन ना हो सकेगा। हाफिज अब्दुल्ला ने रुक कर लेकिन मुसलसल बोलते हुए कहा, क्या काफिरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऐसी घटिया सोच के मालिक हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, घटिया और आला सोच का फ़ैसला हर शख्स अपने बारे में खुद करता है और जो मुझे मालूम था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं तुम्हारी और तो कोई खिदमत नहीं कर सकता, अगर कहो तो मेरे पास सादा पानी है वो पेश कर दूं। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, मेहरबानी जनाब, सुपर फयाज पर कुछ मेहरबानी कर दें। इमरान के बोलने से पहले सुलेमान ने जल्दी से कहा, मैं तो एक गरीब सा जल्दसाज हूं, मैं किसी पर क्या मेहरबानी कर सकता हूं? अल्लाह ताला अपनी रहमत करता है और मैं भी अल्लाह ताला का आजिज़ तरीन बंदा उसके सामने आजिज़ाना दरख्वास्त ही कर सकता हूं। वो कादिर मुतलक है।
हाफिज अब्दुल्ला ने कहा और एक बार फिर जल्द साजी का काम शुरू कर दिया। काले जादू का मरकज़ कहाँ है? खामोश बैठे इमरान ने कहा तो हाफिज अब्दुल्ला के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। काफिरिस्तान के शुमाल मशरकी पहाड़ी इलाकों में कदीम दौर का एक महल बना हुआ है जिसे चौरास महल कहा जाता है। काफिरिस्तान के मशहूर इलाके बान बाला में इसे दुनिया भर में काले जादू का मरकज़ कहा जाता है। ये वीरान पड़ा है लेकिन इस पर काले जादू की बदरूहों का कब्जा है। हाफिज अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा, जनाब, ये काला जादू असल में है क्या? इमरान ने पूछा। काफिरिस्तानियों के अकीदे के मुताबिक जिन मर्दों को वो शमशान घाट में जलाते हैं उनमें से इंतहाई गुनहगार लोगों की रूहों पर काले जादू के पंडित कब्जा कर लेते हैं और उन्हें शमशानी कहा जाता है। इसके बाद इस तरह मुख्तलिफ दर्जों की बदरूहें होती हैं जिन्हें कब्जे में कर लिया जाता है। उनकी मदद से लोगों को खौफनाक और नाकाबिल इलाज बीमारियां अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, हलाकतें हो जाती हैं, कारोबार में ऐसे नुकसानात गिराए जाते हैं जो नाकाबिल तलाफी होते हैं। मसलन गोदामों में अचानक आग भड़क उठना और फिर इस आग का किसी सूरत इस वक्त तक ना बुझना जब तक सब कुछ राख ना हो जाए। ऐसे बेशुमार हरबे हैं। हाफिज अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा, ये काला जादू सिर्फ काफिरिस्तान में ही है। इमरान ने कहा, काफिरिस्तान में तो इसका बहुत जोर है लेकिन यहाँ पाकिशिया में भी बेशुमार आमिल मौजूद हैं जो लाखों रुपए लेकर रकम देने वालों के मुखालिफों पर काला जादू करते कराते रहते हैं। लेकिन यहाँ पाकिशिया में ऐसे आलिमों की तादाद बेहद कम है जो वाकई काले जादू के आमिल होते हैं, वरना यहाँ दुकानदारी ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल ये वबा पूरे पाकिशिया में फैली हुई है और औरतों की अक्सरियत इसका बेहतरीन शिकार है। यह हाफिज अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा, ये आगे अबिताल क्या होता है? इमरान ने पूछा। अब इसका अंदाज हाफिज अब्दुल्ला से पूछने का ऐसे था जैसे तालिब इल्म अपने उस्ताद से सवाल पूछता है। ये काले जादू का सबसे खतरनाक हरबा है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन इसके आमिल बेहद कम होते हैं और उसका तोड़ भी बेहद मुश्किल होता है। वैसे तोड़ करने की नौबत बहुत कम आती है, ज़्यादातर उसके शिकार खुद ही हलाक हो जाते हैं। इसमें बज़ाहिर कोई आग नहीं होती लेकिन इसका शिकार खुद को आग में जलता हुआ महसूस करता है और उसे बिल्कुल ऐसी ही तकलीफ महसूस होती है जैसी आग में जलने वालों को महसूस होती। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, जनाब, सुपर फयाज पर मेहरबानी करे। सुलेमान ने एक बार फिर मुदाखलत करते हुए कहा, तुम्हारे साहिब को तो सुपर फयाज की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें फिक्र है। क्यों? हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, हाफिज साहब, मुझे इसकी बेहद फिक्र है और फिर जैसा कि आपने बताया है कि वो मेरी वजह से इस अजाब का शिकार हुआ है, आप मेहरबानी फरमाएं और उसका तोड़ कर दें। इमरान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, मैं किस किस का तोड़ करता रहूंगा? हाफिज अब्दुल्ला ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मतलब? क्या और लोग भी उसकी जद में आएंगे? इमरान ने चौंक कर पूछा। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंतहाई कमज़ोर अकीदे के मालिक हैं। वो अपने दुश्मनों का मुकाबला मैदान जंग की बजाय काले जादू से करना चाहते हैं और इसमें नाकामी की सूरत में वो अब इंतकाम लेने पर तुल गए हैं और काफिरिस्तान में काले जादू के आमिलों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है, वो इस बार पहले तुम्हारी अम्मा बी को निशाना बनाना चाहते थे लेकिन इस नेक और इबादत गुजार खातून पर उनका बस नहीं चला। फिर वो तुम्हारे डैडी की तरफ पलटे लेकिन वहां भी उन्हें नाकामी हुई तो वो सुपर फयाज की तरफ आ गए। सुपर फयाज के ठीक होने पर वो दोबारा वार करेंगे और हो सकता है कि तुम्हारी बहन सुरिया, तुम्हारे बहनोई वकार हयाता, मेरे सामने बैठा हुआ सुलेमान, तुम्हारे सीक्रेट सर्विस के साथी और न जाने कौन कौन इस इंतकाम की भीड़ चढ़ जाएं। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा तो इमरान की हालत देखने वाली हो गई। वो फटी फटी आंखों से बूढ़े हाफिज अब्दुल्ला को देख रहा था। इसे इस बात पर हैरत हो रही थी कि ये बूढ़ा हाफिज अब्दुल्ला इसके ख़ानदान के अफराद, दोस्तों और सीक्रेट सर्विस सबसे इस तरह वाकिफ़ था जैसे वो उन सब के साथ रहता चला आया हो। हालांकि इमरान की इससे पहली मुलाकात थी। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अल्लाह ताला का करम है कि वो अपने बंदे के क़ल्ब पर जो चाहे रोशन कर दे। हाफिज अब्दुल्ला ने इमरान की कैफियत को समझते हुए कहा तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। तो आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? इमरान ने कहा, मेरे चाहने और ना चाहने से क्या होता है? वही होता है जो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है और वही अपने बंदों को नेक अमल करने की तौफीक देता है, लेकिन नेक अमल की हर राह में तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। सुपर फयाज पर काले जादू का तोड़ तो मैं कर देता हूँ लेकिन उसके बाद काली दुनिया के ये लोग क्या खामोश होकर बैठ जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था कि मैं किस किस का तोड़ करता रहूँगा। और मैं तो वैसे भी कब्र में पीर लटकाए बैठा हूँ, हाफिज अब्दुल्ला ने मुसलसल बोलते हुए कहा।
اگر اس چوراس محل کو تباہ کر دیا جائے تو کیا یہ سلسلہ تھم جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ خیروشر میں روز اول سے آویزش چلی آ رہی ہے اور روز آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ البتہ کالی دنیا کے اس مرکز کے خاتمے کے بعد کم از کم پاکیشیا میں جو کالے جادو کے عامل ہیں اور جنہوں نے خلق خدا کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی ہیں، اس کا سلسلہ ایک طویل عرصے تک رک جائے گا۔ باقی دکانداری تو ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہے، لیکن اس میں صرف مال کا نقصان ہوتا ہے، انسانی جانیں تو محفوظ رہتی ہے۔ حافظ عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ عارضی طور پر ایسا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ عارضی بھی خاصے طویل عرصے پر مبنی ہے، لیکن اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم بموں اور میزائلوں سے اس محل کو تباہ کر دو گے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس محل کی اصل طاقت محل کی دیواروں اور چھتوں میں پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی اصل طاقت شیطان کی ایک چھوٹی سی مورتی میں ہے۔ اس مورتی کو ہزاروں انسانوں کے خون کی بھینٹ دی گئی ہے۔ اس مورتی کو کالے جادو کی زبان میں کلجگ کہا جاتا ہے۔ کالی دنیا کی تمام بدروہیں اور دوسری تمام شیطانی طاقتیں اس کلجگ کے تحت ہیں۔ جب تک اس کلجگ کو تباہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کالے جادو کا یہ سلسلہ نہیں رک سکے گا۔ حافظ عبداللہ نے کہا۔ کیا یہ کلجگ بھی چوراس محل میں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن کہاں موجود ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اس کی حفاظت خود شیطان اور اس کی لاتعداد شیطانی طاقتیں کرتی ہیں، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ کالی دنیا کے حالات آئندہ بھی ایسے ہی رہیں گے جیسے اب ہے۔ البتہ وہاں تیزی سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس لیے کلجگ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ حافظ عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپا سید چراغ شاہ صاحب اس کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ عمران نے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور یہ اس آدمی کی خوش قسمتی ہے کہ اس کا چناؤ کسی نیک کام کے لیے کر لیا جائے۔ حافظ عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب چاہتے ہیں کہ میں اس کلجگ کا خاتمہ کر دوں؟ عمران نے کہا۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار تو نہیں کیا، میں نے تو کہا ہے کہ 100% فیاض ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر کیا حالات پیش آتے ہیں وہ میں نے تمہیں بتا دیے ہیں۔ حافظ عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن حافظ صاحب، یہ تو وہی پوزیشن آ گئی کہ کافرستان کے پرائم منسٹر مجھ سے ذاتی طور پر انتقام لینا چاہتے ہیں، اور میں بھی اپنی ذات اپنے دوستوں کا انتقام لینا شروع کر دوں۔ عمران نے کہا۔ شیطان کے خلاف جدوجہد کرنا تو ہر مسلمان کا فرض اولین ہے، اور جب اس جدوجہد کے نتیجے میں لاکھوں معصوم اور بے گناہ لوگوں کو تکلیف سے نجات مل جائے تو ایک مسلمان اور کیا خواہش رکھ سکتا ہے؟ حافظ عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لیے مجھے اب جیسی شخصیات کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ عمران نے کہا تو حافظ عبداللہ بے اختیار ہنس پڑے۔ مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، اور وہ کرتی بھی ہے۔ شخصیات کا سہارا تو عارضی اور وقتی ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملتا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے، اور جب کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اسے آسانیاں میسر آتی رہتی ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سفر شرط ہے، مسافر نواز بہت مل جاتے ہیں۔ سفر کے راستے میں ہزاروں شجر سایہ دار مسافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل جاتے ہیں۔ حافظ عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کالی دنیا کے خلاف جدوجہد کروں گا اور اس کلجگ کو تباہ کر کے ہی واپس آؤں گا۔ عمران نے کہا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ حافظ عبداللہ نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ سپر فیاض کے بعد اگر وہ مجھ کسی اور ساتھی پر عمل کر دیں۔ عمران نے کہا۔ تمہارے اس راستے پر چلتے ہی اس کا بندوبست بھی قدرت خود بخود کر دے گی۔ میں نے کہا ہے کہ شیطان کے خلاف جدوجہد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تم اس بارے میں بے فکر رہو۔ ایک بات بتا دوں کہ اس راستے پر ایک قدم آگے بڑھانے کے بعد واپسی یا فرار کا راستہ نہیں ملے گا۔ کامیابی ہوگی یا موت، ان میں سے ایک میسر ہوگی۔ حافظ عبداللہ نے کہا۔ واپسی کا لفظ تو ویسے بھی میری لغت میں نہیں ہے حافظ صاحب، لیکن مجھے رہنمائی تو بہرحال چاہیے۔ جیسے اب سے بات چیت کر کے بے شمار باتوں کا علم ہوا ہے، کیونکہ ان معاملات میں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ عمران نے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، وہ خود ہی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ تمہیں ہر قدم پر رہنمائی ملتی رہے گی۔ حافظ عبداللہ نے جواب دیا۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ عمران نے کہا تو حافظ عبداللہ بے اختیار مسکرا دیے۔ آیت الکرسی اور موعظتین شیطان کے خلاف سخت حصار ہے۔ باقی پاکیزگی، باوضو رہنا اور خلوص نیت،
शैतान के खिलाफ तुम्हारे हथियार हैं। अलबत्ता पाकीज़गी को सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी ना समझा जाए। ज़हनी, क़ल्बी और जिस्मानी पाकीज़गी के साथ साथ किरदार की पाकीज़गी भी इस पाकीज़गी में शामिल है। हाफ़िज़ अब्दुल्लाह ने जवाब देते हुए कहा, बहुत शुक्रिया जनाब, मैं ख्याल रखूंगा कि आपकी उन बातों पर अमल करता रहूं। अब सुपर फयाज़ का क्या होगा? इमरान ने कहा, सुलेमान, तुम वो सामने ताक में सब्ज़ रंग की छोटी बोतल पड़ी है वो उठा लो। इसमें आब ज़मज़म है जिस पर अल्लाह ताला का कलाम भी पढ़ा गया है। इसके चंद कतरे सुपर फयाज़ के हल्क में डाल देना। वो न सिर्फ ठीक हो जाएगा बल्कि आइंदा भी काली दुनिया के हरबों से महफूज रहेगा, और बाकी बोतल इमरान को दे देना। इसके काम एगी। और इमरान, तुमने सुपर फयाज़ के दफ्तर में जाकर उसकी अलमारी के निचले खाने में एक गत्ते का सिया रंग का बॉक्स पड़ा होगा। इस बॉक्स में सुपर फयाज़ के कतरे हुए नाखून और इसका एक पुराना रुमाल पड़ा होगा। तुमने ये बॉक्स दरिया या शहर में बहा देना है। हाफ़िज़ अब्दुल्लाह ने कहा, फयाज़ के नाखून और रुमाल वो कहाँ से इस बॉक्स में आ गए? इमरान ने हैरान होकर कहा, काले जादू की ताकतें ऐसी ही चीज़ें हासिल करके आमिल तक पहुंचाती हैं और फिर उन पर शैतानी अमल किया जाता है। हाफ़िज़ अब्दुल्लाह ने जवाब देते हुए कहा, तो सुलेमान ने उठकर ताक में पड़ी हुई सब्ज़ रंग की छोटी सी शीशी उठा ली। अल्लाह ताला हामी व नासिर हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, मेरा बहुत सा काम पड़ा है और मुझे ये सब काम करना है। हाफ़िज़ अब्दुल्लाह ने कहा, तो सुलेमान और इमरान दोनों समझ गए कि अब उन्हें जाने का हुक्म दिया जा रहा है। चुनांचे वो दोनों सलाम करके और अल्लाह हाफ़िज़ कहकर उसके कमरे से बाहर आ गए। मुझे हर बार जब भी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, मुझे हर बार शदीद हैरत होती है कि ये लोग रूहानी तौर पर किस कदर बुलंद होते हैं, लेकिन खुद इसी हाल में रहते हैं। हालांकि ये चाहें तो दुनिया की तमाम आसाइशें इनको मुयस्सर आ सकती हैं। इमरान ने कहा, साहिब, ये लोग दुनिया से बेनियाज होते हैं। उनकी नज़र में दुनिया महज बच्चों का खेल तमाशा होता है। सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। Like, comment, share, press the bell icon.